السلام علیکم، میں ہوں سید اعتزاز حیدر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی اے نیوز۔ آج گجرات سٹی پنجاب کا شہر ہے، اس کا ایک گاؤں ہے جیو ونجل، جہاں پر ہم موجود ہیں اور آج ان کے پاس آج پورا دن ہم ان کے ساتھ گزاریں گے۔ میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جیو ونجل جو گاؤں ہے یہ بولے جلال پور جٹا روڈ سے تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہاں پر ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا، جہاں پر اس وقت ہم کھڑے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے، ٹرسٹ کے جو ممبران ہیں ان کے گاؤں سے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اور وہ ادھر سے فنڈنگ کرتے ہیں۔ فنڈنگ کر کے ادھر کے جو انہوں نے سوسائٹی بنائی ہوئی ہے اس کے اخراجات سے انہوں نے یہ ایمبولینس خریدی ہے۔ اسی گاؤں میں 300 سے زائد جو کرسیاں ہیں وہ انہوں نے یہاں پر لی ہیں، جو شادی بیاہ اور جو دیگر تقریبات ہوتی ہیں وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید ان کے جو ممبران ہیں ان میں کوئی صدر نہیں ہے، کوئی جنرل سیکرٹری نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، سب ممبر برابر ہیں۔ تقریباً 1.5-2 کروڑ کی لاگت سے اپنے گاؤں کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت ترقیاتی کام کیے ہیں۔ ہر مہینے کا ان کا ایک ممبر جو ہے وہ صدر ہوتا ہے، اور وہ 1 سے 30 تاریخ تک 31 تاریخ تک جو بھی ڈیٹ آتی ہے وہاں تک صدر رہتا ہے، جس نے تمام ریکوری کرنی ہوتی ہے۔ ریکوری کرنے کے بعد کوئی بھی انہوں نے جو ترقیاتی کام آپس میں مل کر سوچا ہوتا ہے اس پہ وہ پیسے لگاتے ہیں، اور جو باقی بچ جاتے ہیں وہ نیکسٹ آنے والا جو ان کا ممبر اس کو صدر نامزد کیا جاتا ہے نیکسٹ دوسرے مہینے کا۔ اس مہینے کے جو صدر ہیں عمران صاحب، ان سے بات کریں گے، وہی ہمیں زیادہ بریف کریں گے کہ اس گاؤں میں کون کون سے ترقیاتی کام ہو چکے ہیں اور کیا کیا ان کے آگے نیکسٹ ارادے ہیں۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ پلیز اس کے بارے میں تھوڑا بریف کریں کہ عوام کو پتہ چلے کہ گجرات میں یہ آپ نے انقلابی کام کیسے کیے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں عزت افزائی پہ بخشی۔ بیسیکلی جب آپ کو یہ بات بتائی جائے کہ رضائے مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا قیام کس طرح عمل میں آیا تھا، تو یہ خالصاً رضائے الہی کی وجہ سے تھا کہ ہم اپنے گاؤں کے غرباء کی مدد کے لیے یہ ہم نے ایک ٹرسٹ، ایک ادارہ بنایا تھا۔ پھر آگے جب یہ ادارہ ترقی کرتا گیا تو ہماری ویلیو بھی چینج ہوتی گئیں، اور ہم نے اپنے پورے گاؤں کا سسٹم اس میں شامل کر لیا، اور تمام گاؤں کے اب ہمارے پاس انتظامات ہیں۔ رہی بات فنڈنگ کی، تو سب سے زیادہ جو ہماری اس ادارے کی، کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ فنڈنگ جو ہوتی ہے وہ بیسک وجہ ہوتی ہے۔ ہماری فنڈنگ میں سب سے زیادہ کمیونٹی ہے جو اوورسی کمیونٹی ہے، وہ ہمارا تعاون کرتی ہے، اور ہم انہی کی وجہ سے اپنے گاؤں میں ایسے کام جو ناممکن تھے وہ کر رہے تھے۔ ہمارے گاؤں کی تاریخ بھی بڑی عجیب ہے۔ بیسیکلی پولیٹیکل لیول اگر دیکھا جائے، سیاسی طور پہ ہمارا گاؤں یتیم تصور کیا جاتا ہے۔ یونین کونسل میں سب سے بڑا گاؤں ہے لیکن بیسک فیسلٹی سے محروم ہے۔ ابھی تک ہمارے گاؤں میں گیس نہیں ہے، صاف پانی کی سہولت موجود نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں 3 بڑے بڑے جوڑ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا زیر زمین پانی گندا ہو چکا ہے، اور تقریباً 70% آبادی اس گاؤں کی کالے یرکان سے سرو کر رہی ہے۔ جب ہم نے یہ تمام لوازمات اور یہ تمام چیزیں مد نظر رکھیں تو ہم نے یہ ایک ادارہ بنیاد رکھی اس کی، اور الحمدللہ یہ ادارہ بہت زیادہ تیزی سے کام کر رہا ہے۔ باقی جو کام ہے، آج دن تک ہم نے تقریباً 2 کروڑ کے قریب لاگت سے اپنے گاؤں میں ترقیاتی کام کیے ہیں، جن میں سے سب سے بہتر جو ہے وہ ہم نے ایمبولینس کا انتظام کیا ہے، جو غریب لوگ ہیں ان کی بالکل فری سہولت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 300 افراد کا ٹینٹ سروس بھی موجود ہے، جو شادی پہ بالکل تھوڑے سے چارجز پہ دیا جاتا ہے، اور مرنے پہ، فوتگی پہ بالکل فری دیا جاتا ہے، کوئی چارج نہیں ہوتی۔ تعلیم پہ ہم نے خصوصی طور پہ توجہ دی ہے۔ تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپیہ ہم نے اپنے گورنمنٹ بوائز اسکولز اور گورنمنٹ گرلز اسکول کا اپگریڈیشن کے لیے لگایا گیا ہے۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی اپنے گورنمنٹ گرلز اسکول میں پی جی گروپ کی ایک کلاس روم پلے گروپ ہے، جو اس کی کلاس روم تعمیر کروایا ہے، جس پر تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ ہمارا خرچہ ہے، اور وہ ہم نے بیسیکلی اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے پہ بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قرض حسنہ کی اسکیم ہے۔ قرض حسنہ کی اسکیم میں ہم اپنے گاؤں میں ہر آدمی جو بے روزگار ہے اس کو ہم قرض حسنہ دیتے ہیں، اور اس کی واپس کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، وہ اپنی جتنی اس کی کوشش ہے کہ منتھلی وہ ہمیں 100 روپیہ ریٹرن کر سکتا ہے تو 100 کرے گا،
अगर 1000 रुपया रिटर्न कर सकता है तो हमें 1000 रुपया रिटर्न करेगा। और इस मद में भी हमने तकरीबन अपने गांव में 4 लाख रुपया दे चुके हैं। अभी रिसेंटली कोरोना क्राइसिस आए थे, कोरोना क्राइसिस में हमने अपने गांव में 100 ख़ानदान में 3 माह तक लगातार राशन तकसीम करते रहे और इसकी लागत में तकरीबन 5 लाख रुपया हमारे पास। रिसेंटली जो रमज़ान गुजरा है इसमें 16 लाख रुपया हमने ज़कात की मद में अपने गांव में तकसीम किया। और इसी तरह मज़ीद काम बहुत अच्छे हैं। 10 से 20 बच्चियों की हमने शादी 2 साल के अंदर अंदर की हैं, जिन्हें हम मुकम्मल जहेज़ पैकेज देते हैं। तकरीबन 1 लाख रुपया का जहेज़ पैकेज हम दे रहे हैं। 3 से 4 बच्चियां जो हायर लेवल पे पढ़ रही हैं, जो डॉक्टर बननी हैं, MBBS कर रही हैं, वो उन्हें ट्रस्ट सपोर्ट कर रहा है। उनके तमाम अखराजात ये ट्रस्ट सपोर्ट कर रहा है। और इंशाल्लाह रिसेंटली हमें एक तरक्याती प्रोजेक्ट भी हमारे रेन में है। हमने इस गांव में एक इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल भी बनाना है, जिसके लिए जगह हमारे पास आ चुकी है और मज़ीद फंडिंग जारी की जाती है। इसके अलावा मज़ीद काम जो हैं वो मेडिकल है। मेडिकल के ज़मरे में तकरीबन 4 लाख रुपया हमने अभी तक सर्व किया हुआ है। रोज़गार स्कीम है। जनाज़ेगाह 2 जनाज़ेगाह, महल्ला मगरबी और महल्ला मशरकी जनाज़ेगाह तमीर किए गए हैं। वो तकरीबन 30 लाख एक जनाज़ेगाह के पे लागत आई थी, 30 लाख रुपया। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा काम है जी। ये इन्होंने जो आपको तफसीलात बताई हैं, आपने इनकी ज़बानी सुनी है। मैं इधर इनसे जब मैं इस वक्त अभी आया तो मैंने इनसे पूछा कि ये इसके बानी कौन है, और बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। कहते हैं कि ये सब की सोच थी और हम सब ने मिल के ये मेहनत की है। फिर भी मैंने इंसिस्ट किया तो उन्होंने कहा कि हम 7-8 दोस्त थे, बैठे हुए थे, तो एक गरीब लड़का गाँव का ही है तो हमारे पास आ गया। उसने आके कहा कि यार मेरे चचा बीमार हैं और मैं समझ नहीं आ रही उनका इलाज कैसे करवाऊँ। और सब ने अपनी पॉकेट से 1-1 हज़ार रुपया निकाल के दिया और वो 7-8 हज़ार रुपया ले के जिस वक्त अपने चचा को गया तो बाद में यही सोच उनको आई कि उन्होंने ये सोचा कि गांव के गरीब जो तबका है उनके लिए कुछ करना चाहिए। वो सोच के इस वेलफेयर की बुनियाद रखी। ये 2008 में इसकी बुनियाद रखी गई, जो है कि आहिस्ता आहिस्ता बनते बनते 2018 में इसने पीक पकड़ी और 2021 में आज उन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा फंडिंग अपनी मदद आप के तहत करके एक बड़ा अच्छा काम किया है। और मेरा यही था कि मैं कोशिश करूं कि ये पैगाम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों तक पहुंचाऊं कि अपनी मदद आपके तक अगर हर गांव ये काम करना शुरू कर दे तो ये जो सियासतदान हैं जो सिर्फ हमें नालियों गलियों और इसके भरोसे पे वोट मांगते हैं, इनका काम था हमारे बच्चे जो बेरोज़गार हैं उनको आला ईवानों में जाके आवाज़ उठाते और उनके रोज़गार का कोई काम करते। लेकिन ये नालियाँ टूटती हैं, फिर अगले सियासतदान आते हैं वो नालियाँ बनाते हैं। और ये जो गांव पसमानदा गांव हैं, इतनी पसमानदगी इसमें इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ तक वो कहते हैं कि पहुँच ही नहीं सकता था। यूनियन कौंसिल जो है वो यतीमी जैसे यतीम होता है इस तरह इसके साथ इसका हाल किया जा रहा था। ना यहाँ पर गैस है, ना पानी है, कोई भी सहूलियात मुयस्सर ना थी। लेकिन इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो तरक्याती काम किए, इन्होंने बताया भी हमारे पास कलीमुल्लाह भाई साहब हैं, ये BC जो है ट्रस्ट का हिस्सा हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे और मज़ीद इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई प्लीज़ बताइएगा कि मज़ीद जो सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस गांव में आके इज़्ज़त बख्शी है और आपने टाइम अपना हाथ खड़ा हमें दिया है। सबसे पहले जो मैं बात करना असल में चाहता था ना, हमारा जो ट्रस्ट है ना ये बिल्कुल गैर सियासी है, इसमें सियासत नहीं है। और हमारे जो ओवरसीयर भाई हैं वो इसका मेन सासा है, वही हमें फंडिंग भेजते हैं। बाहर से हमारा जो यानी कि दूसरे मुल्कों से हमारे जो गाँव के लड़के हैं वही हमें फंडिंग भेजते हैं। और हमारे ये जो मजलिस आमला के मोहतरम मेंबर बैठे हुए हैं ये हम लोग की तरफ से काम करते हैं। और उसमें ये कर्ज़ असना की स्कीम है, उसके बाद रोज़गार एक स्कीम है, उसके बाद तलीम है, मेडिकल फ़ंड है, गरीब बच्चियों का है, उसके बाद राशन की स्कीम है, उसके बाद जनाजा गाह, टेंट सर्विस, बल्दियाती निज़ाम। अभी हम जो बल्दियाती निज़ाम लेके आए हैं ये तकरीबन हमने इसका काफ़ी जगह से विज़िट किया है। ये शहर में भी ऐसा नहीं है किसी भी में कि डोर टू डोर डेली कचरा उठाते हैं और उसको जलालपुर जट्टा में फेंक के आते हैं। इधर नज़दीक तरीन हम समझते हैं कि गंदगी जो है वो ना डाले, जो उधर बल्दिया ने जगह बनाई हुई है उसमें हम फेंक के आते हैं। और पूरे गांव में स्ट्रीट लाइटें जो है ना वो हमने लगाई हैं। तकरीबन 4 रास्ते हमारे गांव में आते हैं, एक जलालपुर जट्टा से बकोटी रोड से, एक ठठा मूसा से, एक शानी कोटली से और एक नूरा मंडियाला से। चारों रास्ते पे जितनी
गांव की हदूद है उसमें सब हमने स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं और गांव में भी। और उसके बाद सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, वो हमने पूरे गांव के अतराफ़ में कैमरे लगा दिए हैं कि कई दफ़ा ये मसला बन जाता था, कोई छोटा मोटा वारदात हो जाती थी तो लोग ढूंढते रहते थे। अभी ये जो है हमने अपने ऑफिस में भी लगाए हैं। स्कूल में सबसे मेन था हमारा गवर्नमेंट स्कूल, उसमें 2-3 दफ़ा चोरी हो गई है। कुछ ऐसे आदमी थे कुछ नुकसान कर जाते थे, टैंकी को, टूटियों को, बूटों का, ये दरख्त जो है इनको तोड़ देते थे। वो फिर हमने उधर भी कैमरे लगाए हैं। सिक्योरिटी का निज़ाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी बहुत बेहतरीन हो गया है। और ये जो सबसे मेन हमारा आने वाले वक्त में, वो सदर साहब भी बता रहे थे कि हमारे गांव में 3 तरफ जोड़ हैं पानी के। जो मेन मसला है वो पानी का है कि बारिश का पानी हमारा बाहर नहीं किसी तरफ जाता, वो इधर जोड़ों में खड़ा रहता है। और हमारा ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो भी बहुत ख़राब हो गया। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं और उसकी हमने जो MNA हज़रात हैं, MP, उनको भी हमने मदद के लिए बोला है। अगर वो मदद दे देंगे तो वेलकम, अगर नहीं देते तो फिर हम उसको अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि मगरबी महल्ले में एक नाला जो है वो अभी हम अपनी मदद आपके तहत निकाल रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम कामयाब हो जाएंगे। दूसरे भी जोड़ जो है वो ख़त्म कर देंगे। और हमारा जो मेन है कि वो हम इसमें एक मेडिकल एक अस्पताल बनाएं जो कि गांव में ही जो बीमार आदमी हो, जो हम गुजरात या जलालपुर में लेके जाते हैं, उनको यहीं सहूलतें मिले। और बच्चों की तलीम है, ये मेन जो है ये हमारे प्रोजेक्ट। अच्छा, मज़े की बात यहाँ आपको बताता चलूँ, नशे के खिलाफ भी इन्होंने जो है वो मुहिम चलाई हुई है, जिसके लिए इन्होंने तकरीबन 15-20 हज़ार रुपया वो भी पूरे गांव में हमने ना इसके बैनर भी लगाए थे पूरे गांव के चारों तरफ। और हम इसको, हमारा ये मंशूर में शामिल है कि हम गाँव को नशे से पाक करें और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो बेहतर से बेहतर हो सकें, क्योंकि नशा जो है ये आखिर मौत है। अच्छा जी, इसके बाद मैं ये बताता चलूँ, इन्होंने ट्रस्ट का दफ्तर जो है वो तकरीबन इस पर 1.5-2 लाख रुपए लगाए। उसके बाद ख़राब गलियों नालियों पे इन्होंने तकरीबन 3-3.5-4 लाख रुपया इसके ऊपर लगा दिया है। उसके बाद 2 अदद जनरेटर इन्होंने लेके रखे हुए हैं कि अगर कोई शादी या कोई फतीदगी हो जाती है उस पर इन्होंने उसके लिए भी तकरीबन 2 अदद बड़े जनरेटर, 10 पंखे, अच्छा दोनों जनाजा गाहों में पंखे जो हैं वो उन्होंने लगाए। उसके बाद CCTV कैमरास की हम बात करते हैं तो इन्होंने पूरे गांव में हर गली की नुक्कड़ पे तकरीबन सब घरों के सामने CCTV कैमरा रखे हुए हैं, लगवाए हुए हैं। इसके बाद साउंड सिस्टम का इन्होंने रेंज रखा हुआ है। उसके बाद ठट्ठा स्कूल में इमारत की इन्होंने तामीर करवाई है। और जो शहरों के स्कूल हैं जैसे हमारे नर्सरी प्रेप की जो क्लासेस होती हैं इन्होंने वो भी तैयार किया, उसका भी हम आपको विज़िट करवाते हैं, आपको दिखाएंगे। बात तो ये है भाई साहब, बातें बताते चलेंगे। माशाल्लाह ये ज़ाय मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से ये ट्रस्ट बना हुआ है। ये नाम इतना पकीज़ा है माशाल्लाह। इसमें बड़े सभी दोस्त जो हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे बच्चे लोग हैं, जवान लोग हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं, माशाल्लाह इस तरह वो तावन करते हैं कि यकीन करेंगे आपको उनकी जुनून की हद का पता चल जाएगा ना अगर हमारे विलेज का, तो आप हैरान रह जाएंगे। ये तो भी आप नॉर्मल हालत में बैठे हुए हैं यार, वो TV पे आएगा, चैनल पे आएगा, इसलिए ज़रा वो लिमिट में बात कर रहे हैं हम सब। लेकिन जब आप इनको काम करते हुए इधर ग्राउंड में देखेंगे तो आप यकीन नहीं आएगा आपको कि ये किस तरह यार जुनून की आदमी अपना काम नहीं को बंदा करता। जिस तरह ये जुनून की आदमी, ये सारे बब्बर शेर जो जवान हैं ना, जो ये काम करते हैं विलेज में और अपने काम कहीं बाद बात छोड़ के तो इसको टाइम देने में वो लग जाते हैं। इसी तरह ओवरसीज़ भी है, वो आपको भी पता है काफ़ी देर से ये कोरोना वायरस भी आया हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान में भी बाहर भी हर जगह प्रॉब्लम भी है। लेकिन हमारी फंडिंग जो है माशाल्लाह वो इतनी नेक नीति से, कोरोना के हवाले से भी, जब ये कोरोना का क्राइसिस आया हुआ था तब भी उस वक्त से ये बढ़ती जा रही है कि आज माशाल्लाह अभी हम इधर दोस्त जो मजलिस अमला के होते हैं वो प्रोजेक्ट का देख रहे होते हैं, उधर से फंडिंग जनाब यकदम हमारे पास पहुंच भी आती है। जी फंडिंग इतनी होगी आपके लिए, जी ये काम जो प्रोजेक्ट आपने करना है वो मुकम्मल होगा। तो वैसे भी आपको पता है कि कोई बंदा ये एतराज़ नहीं करता है एक दूसरे पे, भाई ये क्यों काम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। ये हमारा एक मजलिस अमला का मतलब कमेटी बनी हुई है जो जैसे कुरान पाक वो बनी हुई है, वो फैसला कर लेती है। ये नहीं होता कि इस पर इतराज़ लगा दिया फ़लाँ बंदे ने, फ़लाँ ने ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं। ये जो सदर होगा अपनी सब दोस्त जो है ना वो राय देंगे उस पर,
وہ صدر صاحب دیکھیں گے کہ کیا یار اس پہ کتنے بندوں کی رائے جو ہے نا مثبت ہے اور کتنے کی منفی ہے. اس کو دیکھ کر وہ جو فیصلہ کرے گا صدر, جو مہینے کا صدر ہوگا, وہی کام ہوگا انشاءاللہ. جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں, جو مہینے کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, انہوں نے ایک پیج بنایا ہوا ہے, سوشل میڈیا پیج. اس کے اوپر ایک سجیشن دی جاتی ہے, اس کے اوپر ہاں یا نہ میں نیچے کمنٹس کیے جاتے ہیں, اور جس کے زیادہ ووٹنگ ہوتی ہے اس ترقیاتی کام پر یہ لوگ کام شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جو بچے چھوٹے ٹینیجر ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ان کے لیے قرآن دازی کی جاتی ہے. انہوں نے قرآن محل بنایا جنازہ گاہ میں. ابھی ہم آپ کو پورے گاؤں کا وزٹ کروائیں گے. ابھی ہمارے پاس ایک بھائی موجود ہے, یہ اپنے حالات کا اظہار کریں گے. جی السلام علیکم سر. سر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ریٹائرڈ آرمی سے صوبہ ریٹائر ہوا. جی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو میں تو آیا تھا ویسے اپنے معاملات میں, لیکن ادھر شامل ہو گیا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ویلفیئر کے کام کر کے, حقوق العباد کے کام کر کے بندے کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور یہی چیزیں جو آگے کام آنے والی. باقی دنیا کی تو زندگی تو فنا فی ہے کسی وقت بھی, تو جو بندہ کام کر جاتا ہے یہی قیامت تک قبر میں ہر جگہ پہ یہی چیزیں کام دیتی ہیں. تو ابھی ہمارے ٹرسٹ کے کوئی سچویشن ہے اس طرح سے ہے کہ ہر بندے کو مجلس عاملہ کو کوئی نہ کوئی چارج دیا ہوا. کسی کو ایمبولینس کا, کسی کو ٹینٹ سروس کا, کسی کو اس طرح اسکول یہ. اور مجھے انہوں نے سونپا ہے کہ قبرستان کے والے سے, جنازہ گاہ کے والے سے. تو یہ بڑا ایک مشکل سا ایونٹ ہوتا ہے فوتگی کا خاص کر کے. اس وقت بندے کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ گھر بار فوت ہو گیا یا کوئی بھی رشتہ دار ریلیٹیو ہے تو ہم کیا کریں گے. تو اس والے سے مطلب مجلس عاملہ کی جو مجھے ڈیٹیلمنٹ دی گئی ہے یہی ہے کہ ان کو پورا زیر نگرانی کرنا. اگر فوت ہو جاتا ہے تو جو میری جو ڈیٹیلمنٹ ہے کہ ادھر ہر قسم کی کفن شفن کا انتظام, پڑیاں وغیرہ جو بھی, وہ سارا مطلب ٹرسٹ کے والے سے ہی ہوتا ہے. اس میں گھر والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جن کا فوت ہو جاتا ہے ٹرسٹ والے سارے ادھر پہنچ جاتے ہیں, گھر کے معاملہ سنبھال لیتے ہیں. اور اس جو بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ جو غریب کسی فیملی کا کوئی فرد فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے کفن پڑیاں سب کوئی فری ہے, اس کے لیے کوئی پیمنٹ نہیں ہے. تو جو صاحب استطاعت ہیں ان سے تھوڑی سی, تاکہ ہمارا بھی سرکٹ چلتا رہے, اس والے سے نارمل سی تھوڑا سا ٹچ کیا کہ تھوڑا سا عطیہ دیا جاتا ہے ان سے. باقی عطیہ تو بہت زیادہ بنتا ہے جو اوور آل جو آج کے مہنگائی کے والے سے, لیکن یہ بہت بڑی خوش آئند بات ہے کہ ان کے لیے کوئی اتنا بڑا برڈن نہیں ہوتا ان کے اوپر. سر آپ کے سامنے یہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی اس گاؤں والے کی یہ جو ٹرسٹ ہے یہ بڑا ایک بہت ایک بڑے پیمانے پر سامنے آیا اور اس سے ہر بندہ مستفید ہو رہا ہے. سر آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہمارے پنجاب کے بیشتر گاؤں آپ دیکھیں گے وہ پسماندگی کا شکار ہیں, بہت پسماندہ علاقے ہیں. تو ان کی عوام کو کیسے دیں گے کہ کیسے مینیج کریں اور یہ کیسے اس طرح کریں کہ ہر گاؤں میں اپنی مدد آپ کے تحت اگر ٹرسٹ بننا شروع ہو جائے تو وہ آپ سے یہ جو ہے وہ مثال جو ہے آپ کی گاؤں کی بڑی اچھی ہے, تو اس کا کوئی میسیج دیں آپ. یہ دیکھیں نا, جو پہلے تو ہم دیکھا آج سے 12 سال پہلے ہمارا ٹرسٹ مد وجود میں آیا تو اسی کو دیکھا دیکھی آج تقریباً اسی نام سے ہمارے ساتھ اسی ٹرسٹ کے مجلس عاملہ سے مل کر 4 ٹرسٹ بن چکے ہیں. تو یہ سیرا جو اسی ٹرسٹ کے اوپر ہی آتا ہے, اسی ہمارے جو جوان ہیں ان کے اوپر ہی. تو اگر دیکھا جائے تو اس نفسا نفسی کے عالم میں, اس مشکل دور کے عالم میں اپنا ٹائم نکال کر ہر بندے کو ہر پیج پہ آنا چاہیے اور ملک و قوم کی خدمت کرنی چاہیے. بہت شکریہ جناب. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شاذب زین ہے, سید شاذب زین. جی زین بھائی پلیز بتائیے گا کہ مزید آپ کے گاؤں میں کیا ترقیاتی کام ہوئے؟ اچھا, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرسٹ میں جب میں شامل ہوا تھا تو تقریباً میری ایج 16 تھی, ٹھیک ہے, تب سے لے کے ابھی تک میں شامل ہوں. تو اس وقت تک جو میرے ذمہ ابھی آپ کی ایج کیا ہوگی ہے؟ ابھی میری 27 ہے. 27 جی, یعنی آپ 16 کے تھے تو آپ شامل ہوئے, اب 27 کے ہو گئے ہیں. تقریباً 22 میں مجلس عاملہ میں شامل ہو گیا تھا. تو ریسنٹلی جو پروجیکٹ سٹارٹ کیے گئے ہیں ان میں ایک جو بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا تھا وہ تھا بلڈ. تو اس کے لیے ہمارے پاس بڑے مسائل تھے کیونکہ ہمیں 3-3 4-4 دن پہلے 2-2 ہفتے پہلے بھاگ دوڑ شروع کرنی پڑتی تھی کہ ہمیں یہ فلاں بلڈ مل جائے. اس میں بڑی مشکلات آتی تھی. اس کے لیے پھر میں اور میرے ساتھیوں نے مل کے پلان کیا کہ ہم ایک بلڈ بینک بناتے ہیں جو کہ ہم سٹارٹ کریں گے اپنے گاؤں لیول پہ,
ठीक है। तो फिर उसे हमने रज़ाए मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ब्लड बैंक का नाम दिया। इसके साथ फिर मेरे साथ एक मेरा और भाई है इब्तिसाम सरवर, उसे ऐड किया गया जो मेरे साथ हेल्प करेगा। उस ब्लड बैंक के तहत गांव में हम कमो पेश 70 से 75 बोतलें जो ब्लड की हैं वो दे चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर जो शामिल हैं वो ओ नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उसके बाद ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, यानी कि मिक्स जितने भी हैं वो सारे हम डोनेट कर चुके हैं। एक ये भी हमारी काविश है जो कि हमने अपने गांव लेवल पे स्टार्ट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी से चल रही है। जैन भाई प्लीज़ बताइएगा कि आगे एक भाई बता रहे थे कि 70% लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस सी बी का शिकार हैं, तो वो क्या वजह बनी और उसकी सफाई का इंतजाम आपने कैसे किया? अच्छा, वो उसके लिए हमारे गांव में आपने देखा होगा हर जगह पे ऐसा होता था कि जगह जगह पे गंदगी के जोहड़, गंदगी के ढेर लगे रहते थे। तो सारों की काविश के साथ मिलजुल के हमने एक प्लान किया कि हम एक बल्दिया का निज़ाम मुतारफ़ कराएं, जिसमें क्या होगा कि सबसे पहले वो जो गंदगी के ढेर हैं वो उठा जाएंगे, वो उठा के उन्हें मुतबादल जगह जो गवर्नमेंट लेवल पे होती है उधर गिराया जाएगा, और उसके बाद क्या किया जाएगा, उन्हें परमानेंट ख़त्म करने के लिए घर घर से कूड़ा उठाया जाए और उसे किसी गाड़ी में डाल के तो उस मुतबादल जगह पे गिराया जाए। उसके लिए फिर हमने एक रिक्शा खरीदा और उसके लिए फिर हमने नौजवानों को रोज़गार दिया, जिसमें 4 बंदे काम कर रहे हैं और उन्हें हम मंथली सैलरी भी दे रहे हैं। और उसके साथ कितनी सैलरी दे रहे हैं? ओवरऑल जो हम ट्रस्ट अभी तक सैलरी दे रहा है एम्बुलेंस की मिला के वो 85,000 है। 85,000 पर मंथ आपकी ट्रस्ट जो है वो दे रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हम दे रहे हैं, पर मंथ 85,000 दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे ऐसे प्लान है कि नेक्स्ट ये आगे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अच्छा जैन भाई प्लीज़ ज़रा बताइएगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जनाजा गाह के लिए आप लोगों ने फ्रिज भी लिया हुआ है, किसी को जो मैयत आती है कहीं बाहर से फ़ौरन से आ जाती है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मौका है, लेकिन अगर आती है तो आप लोगों ने फ्रीज़र भी लिया हुआ है, उसके बारे में बताइएगा। जी, एक फ्रीज़र भी खरीदा गया हुआ है। उसके लिए क्या किया जाता था कि गांव से या इर्द गिर्द के गाँव जिनके लवाहिकीन बाहर रहते हैं वो आते थे, तो उन्हें काफ़ी टाइम जो है ना वो अपनी मैयत को खारियाँ जो है ना वो मुंतकिल करना पड़ता था कि उधर फ्रीज़र के लिए रखवाया जाता था। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गाँव सतह पे हमने एक मैयत फ्रीज़र खरीदा है, जिसकी सहूलत हमने गांव वालों को क्या दी हुई है कि वो जिस जगह पे भी लेके जाना चाहते हैं अपने घर, ये ना करें कि वो अपनी मैयत को किसी दूर जगह पे मुंतकिल करें या किसी दूसरे शहर लेके जाएं, वो अपने घर में ही उस मैयत को जो है ना वो फ्रीज़र में रख के तो उसको ना मतलब सेव कर सकते हैं और लवाहिकीन के आने का इंतज़ार कर सकते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में मुकीम हैं, आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं और ये इन्हीं का गांव है जियो वंजल। ये इसी ट्रस्ट के जो हैं वो मेंबर हैं, इनसे बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं सर बहुत शुक्रगुजार हाँ तुहाडा कि तुसीं पिंड 'च तशरीफ लिआए ते साडी हौसला अफजाई कीती। बाकी साडा ट्रस्ट अपनी मदद आप दे तहत काम कर रहा है। सानू अज तक सियासतदानां दी तरफों काफ़ी परेशानियां ना कख नहीं साडे पिंड वास्ते कीता। साडे मसाइल उत्थे दे उत्थे ही ने ते सियासतदानां दी तीसरी नस्ल आ गई ते लिहाजा असीं उत्थे दे उत्थे ही हाँ। साडे पिंड विच गलियां बनने वालियां ने, छप्पड़ ने, सानू ये ख़त्म करके देण, ठीक है। अगर वो नहीं करके देना चाहते तो ये विच भी साडा ट्रस्ट इंशाल्लाह कामयाब होवेगा, ठीक है। अपनी मदद आप दे तहत इंशाल्लाह कामयाब होवेगा। अज ही नसीमुल्लाह दे कोल आलमोस्ट 3-4 मैंबर ऐसे ने जिन्हें अपने नाम लिखवाए ने कि अगर साडे सियासतदान साडी इहदे च मदद ना करन जोड़ां दे मुतलक तो वो 5-5 लाख रुपया देने दे विच उन्हें अपने नाम लिखवाए तो इंशाल्लाह असीं कामयाब होवांगे, ठीक है जी। तो बाकी इस तरह ही पे चलता है, साडा ट्रस्ट बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। ये जी हाजी साहब ने पैगाम दिया कि इनके पास ऐसे मेंबर्स भी हैं जो 5-5, 10-10 लाख डोनेट करने के लिए तैयार हैं और वो तैयार बैठे हैं कि अगर आला हकाम इनके जो मुतालबात हैं, जो छोटे छोटे काम जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं और इनके टैक्स के पैसों से उन्होंने करवाने हैं, अगर वो नहीं होते तो ये अपनी मदद आपके तहत इनका जो रज़ाए मुस्तफ़ा ट्रस्ट है वो खुद करेगा। इस वक्त हमारे पास मौजूद है कलीमुल्लाह भाई जिन्होंने आगे बात की, तो ये पैगाम देना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई। जी, मेरा जो मुतालबा है वो तो पहले डीसी साहब और हमारे जो MNA सैनलाई साहब हैं, MPA चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ साहब हैं,
और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं, और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ख़ासकर, और हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान साहब हैं उन्होंने जो नारा भी लगाया कि हम रास्ते मदीना बनाएंगे। हमने वोट भी उनको दिया है, क्यों हमारे नीचे जो है इधर पार्टी है वो काफ लीग है, काफ लीग का जो अताद है वो इमरान खान साहब के साथ है। और हमारा ये मुतालबा है इमरान खान साहब से कि ये जो बात हमारी सुन रहे हैं, हमारे गांव के जोड़ ख़त्म किए जाएं, और हमारी जो सड़कें हैं, और ख़ास कर हमें स्कूल जो बच्चियों का है वो हमारा मुतालबा है कि वो में हाई स्कूल करके दें, और हमारे जोड़ जो हैं ये ख़त्म करें, क्यों हमारे जो आने वाली नस्ल है ना वो ख़राब हो रही है। अभी 70 आदमी जो है % हैं वो तकरीबन ये बीमारियों में यरकान में शामिल हो गए हैं, और जितनी जल्दी हो सके ये हमारा पानी वाला मुतालबा जो है वो भी हल किया जाए, और हमारी सड़कों का मुतालबा जो है वो भी हल किया जाए, और हमारे एक अस्पताल जो है वो बना के दिया जाए। ये जी अहले इलाका की जानब से आपने जितने भी इनके जो इन्होंने रफाई काम किए हैं उनकी तफसीलात आप उससे आगाह हो चुके हैं। मज़ीद इन्होंने क्या क्या करना है कि इन्होंने एक बड़ा हॉस्पिटल जो है वो गांव में बनवाना है, जिसके लिए इन्होंने फंडिंग जो है वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। उसके बाद इनका ये जो है कि बच्चियों का जो स्कूल है वो गवर्नमेंट लेवल पे जो है उसको जो है वो प्राइमरी से मिडिल और हाई तक लेके जाया जाए, और जो टूटी फूटी सड़कें हैं जो मेन शराह इनकी जाती है सिटी की तरफ जो वो ख़राब है उसको बेहतर किया जाए। इंशाल्लाह ताला किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। यहाँ मैं आपको ये भी कहता चलूँ कि अगर गुजरात का हर गांव में इसी तरह की ट्रस्ट हो जाए और वो इत्फाक से काम करें, वो दिन दूर नहीं है कि मदीना की रियासत जो है वो पाकिस्तान में कायम होगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। सैयद एतजाज़ हैदर शाह, SBI न्यूज़, गुजरात। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स 15 साल से आपकी खुशियों को जगमगाने वाला सितारा मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स, फ्रेश और खस्ता फास्ट फूड। सितारा की मिठाई के जायके ऐसे जो आप भूल ना पाएं। बादे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसा आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का एक ही सितारा, सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स, नियर स्टाफ गला, सरगोदा रोड, गुजरात।